Hello friends, today we will discuss about Windows. Let's start the introduction of Windows. A computer has a special set of programs which manages all the jobs of a computer and makes it run. This is known as operating system. Without operating system, we cannot even start a computer and work on it. This is the desktop. A colorful screen is displayed when we boot up a computer loaded with Windows. This screen is called a desktop. Windows treat your monitor screen as a tabletop of an office and contains utilities that are found on a table top of an office. And here we are discussing about icons. An icon is a small graphic lying on the desktop which is actually an application or utility at rest. And now taskbar. Taskbar is shown the process going on. Clock is on the right side on the taskbar. User interface and its types. We are discussing here about the user interface. After installing the operating system helps to interact user with computer software, as we discussed about our earlier videos. If we are giving a command to a printer, then it prints and shown as an output. This command is given by the user and processed by the operating system and provide the output of the requirement. So this is the user interface and its types. The commands through which a user communicates with an internal devices or a program are called user interface or simply interface. Interface क्या होता है? Interface एक ऐसा प्रोसेस है जिससे यूजर सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करता है, यूजर इंटरफेस करवाता है, यूजर को इंटरफेस करवाता है कंप्यूटर हार्डवेयर से. तो आइए अब हम आगे देखते हैं यूजर इंटरफेस क्या होता है, किस टाइप का होता है. ये दो टाइप का होता है, CLI एंड GUI. CLI is refers to what? A command line interface requires a user to type the text-based commands using a keyboard to instruct a computer to take the desired action. For example, DOS, Disk Operating System. DOS is a command line interface. DOS एक ऐसा कमांड लाइन इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है जिससे यूजर कमांड्स के थ्रू कंप्यूटर से इंटरेक्ट करता है. एंड नेक्स्ट इज GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, प्रोवाइड्स पिक्चर्स ओरिएंटेड वे टू इंटरेक्ट विद हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. फॉर एग्जांपल विंडोज. अभी हमने लास्ट स्लाइड में हमने देखा था कि डेस्कटॉप कि हमने विंडो देखा था. विंडो के ऊपर हमने डिफरेंट टाइप्स के आइकन्स देखे थे. वो आइकन्स जो है वो ग्राफिक्स से रिप्रेजेंट होते थे. सपोज देयर इज एन आइकन नेम्स माय कंप्यूटर एंड द पिक्चर ऑफ अ कंप्यूटर ऑन इट. तो उस पिक्चर से अंदर हमने माय कंप्यूटर का जो आइकन देखा था, माय कंप्यूटर के आइकन पे कंप्यूटर की पिक्चर बनी हुई थी. उस कंप्यूटर की पिक्चर से जब यूजर इंटरेक्ट करता है विदाउट एनी कमांड, जब कंप्यूटर से यूजर इंटरेक्ट करता है और पिक्चर्स के साथ पिक्चर्स को सेलेक्ट करके जब यूजर कंप्यूटर से ग्राफिक्स को यूज करके इंटरेक्ट करता है तो उसे बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. सो इन DOS there is a command line interface and in Windows there is a graphical user interface. So these CLI and GUI are the types of user interface. Here we are discussing about Windows 7. Windows 7 एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको डेवलप किया है माइक्रोसॉफ्ट ने.
Windows is an operating system developed by Microsoft, world's leading software company. It provides GUI that makes the interaction between the computer and user easy. तो विंडोज 7 क्या है? विंडोज 7 को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने डेवलप किया है और विंडोज 7 एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। जो अभी हमने पढ़ा था, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या होता है कि यूजर ग्राफिक्स को यूज करके सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करता है, वो होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो विंडोज जो है, विंडोज हमारी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, GUI बेस्ड है हमारी विंडोज। इन विंडोज में हम आइकन्स को यूज करके, हम ग्राफिक्स को यूज करके कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं। एंड we will discuss about the features of Windows 7. Windows 7 के बहुत सारे फीचर्स हैं। सबसे पहला फीचर्स तो यही है कि Windows 7 में यूजर ग्राफिक्स को यूज करके इंटरेक्ट करता है कंप्यूटर हार्डवेयर से, और Windows 7 इजी टू यूज है एंड ऑपरेट है। ग्राफिक्स जब जहां पर यूजर पिक्चर्स को यूज करके सिस्टम से इंटरेक्ट करेगा, मीन्स वो इजीली यूज कर सकता है। और ही हैज इम्प्रूव्ड सर्च टूल्स, और जो सर्च कर सकता है वो इजीली कर सकता है। तो अब हम डेस्कटॉप और इसके कंपोनेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। व्हेन वी स्विच ऑन कंप्यूटर, द फर्स्ट स्क्रीन दैट अपीयर्स इज कॉल्ड डेस्कटॉप। जब हम सबसे पहले कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हैं तो जो सबसे पहले हमारे सामने स्क्रीन दिखती है उसको हम बोलते हैं डेस्कटॉप। अभी हमने लास्ट स्लाइड में हमने देखा था डेस्कटॉप क्या होता है। मल्टीपल कलर से बना डेस्कटॉप स्क्रीन होती है जिसमें आइकन्स होते हैं, टास्क बार होते हैं, ठीक है। और उसमें जो आइकन्स होते हैं वो क्या होते हैं? द स्मॉल लेबल्ड पिक्चर्स और सिंबल्स प्रेजेंट ऑन द डेस्कटॉप। आप इधर इस फिगर में देख सकते हैं दिस पीसी, कंट्रोल पैनल, रिसाइकिल बिन, नेटवर्क, ये कुछ हमें आइकन्स दिए हुए हैं जो हमें डेस्कटॉप की स्क्रीन पे शो होते हैं। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ फॉर आइकन। जिस टाइप से हमारी किचन में डिफरेंट हम टाइप्स के लेबल लगाकर हम बॉक्सेस रखते हैं, तो वो जो बॉक्सेस होते हैं उन बॉक्सेस पे लेबल लगा होता है, मीन्स उनका नाम लिखा होता है, जिनको बोलते हैं आइकन। और जिस विंडो के अंदर आइकन्स रखे जाते हैं, जिसमें सारे आइकन्स कलेक्ट किए जाते हैं, उसको बोलते हैं विंडो। So now, taskbar and start button. Taskbar is a long horizontal bar at the bottom of the desktop. It has start buttons on extreme left side. Start button gives you quick access to documents, Windows application, helps and support menu. आप इस विंडो में देख सकते हैं कि इस विंडो में हमने टास्क बार को शो किया हुआ है। इस टास्क बार में एक स्टार्ट बटन होता है, क्विक लॉन्च आइकन्स होते हैं, एंड राइट हैंड साइड में हमारे क्लॉक होती है और नोटिफिकेशन एरिया होता है। उस नोटिफिकेशन एरिया में उस नोटिफिकेशन एरिया में हमारे जितने भी हमारे सिस्टम से रिलेटेड नोटिफिकेशंस हैं वो वहां पर अपीयर होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, लाइक इन लैपटॉप्स, चार्जिंग notify here and added devices notified here, extra devices notified here and printer notified here. So this figure of taskbar is here to describe you better about taskbar and start button. When we clicking on the start button, there is lot of pop-up menus open.
जब हम टास्क बार पे क्लिक स्टार्ट बटन पे जब हम क्लिक करते हैं, स्टार्ट बटन जो कि टास्क बार पे लेफ्ट हैंड साइड में कॉर्नर बटन होता है, जब हम उसको ओपन करते हैं, क्लिक करते हैं, तो हमारे सामने एक लिस्ट आती है जो मल्टीपल प्रोग्राम्स की लिस्ट होती है, जिस लिस्ट से हम अपने प्रोग्राम्स चूज करते हैं और अपनी फाइल्स ओपन करते हैं। ये जो हमारी डिस्क्रिप्शन थी वो टास्क बार और स्टार्ट बटन के रिगार्डिंग थी। ये डेस्कटॉप स्क्रीन पे होता है और बॉटम साइड में होता है। हॉरिजॉन्टल बार होता है टास्क बार। और ये हमारे जो विंडोज एप्लीकेशंस हैं को हेल्प और सपोर्ट मेनू को प्रोवाइड करवाते हैं। So students, hope you better understand about taskbar and start button. Let's discuss about some basic operations on the desktop. Selecting an icon. To select an icon, simply click on it. The icon will be highlighted. जब आप किसी आइकन को ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको आइकन को सेलेक्ट करना पड़ता है, और उस आइकन को सेलेक्ट करने के लिए आप उस पर सिंपली क्लिक करें। द आइकन विल बी हाईलाइट। तो जो आइकन है वो मोस्ट ऑफ द टाइम ब्लू कलर में आपको हाईलाइट करेगा। और देयर इज अनदर वन मोर वे, दैट इज आप माउस से उसी आइकन को राइट क्लिक करेंगे, देन आपको ओपन का ऑप्शन मिलेगा और आप ओपन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो आइकन है वो ओपन हो जाएगा। डिसेलेक्टिंग एन आइकन, जब आपको कोई आइकन डिसेलेक्ट करना है तो आप उसके लिए क्या करेंगे? टू डिसेलेक्ट द आइकन, क्लिक आउटसाइड द आइकन। उस आइकन के बाहर आप क्लिक करेंगे। अरेंजिंग द डेस्कटॉप आइकन, डेस्कटॉप पे किस टाइप से आपको अपने आइकन्स अरेंज करने हैं। हम आपके सामने एक विंडो, आपको अपने सामने एक विंडो दिखाई दे रही है जिसमें आपके लेफ्ट हैंड साइड में बहुत सारे आइकन्स हैं। उन आइकन्स को जब आप अरेंज करोगे तो अरेंज करने के लिए आप राइट क्लिक प्रेस करेंगे। राइट क्लिक प्रेस करने के बाद आप व्यू पे जाएंगे। व्यू पे जाने के बाद आपको बहुत सारे स्मॉल आइकन, लार्ज आइकन, मीडियम आइकन्स, डिफरेंट टाइप्स के ऑप्शंस मिलेंगे, जिन ऑप्शंस को यूज करके आप अपने आइकन्स को एडजस्ट कर सकते हैं उनके साइज के अकॉर्डिंग, लार्ज, मीडियम और स्मॉल के अकॉर्डिंग, डेट के अकॉर्डिंग। आप जिस टाइप से भी चाहें आप उस टाइप से अपने आइकन्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। उनका साइज आप बिग भी कर सकते हैं, स्मॉल भी कर सकते हैं और मीडियम भी कर सकते हैं। तो राइट क्लिक डेस्कटॉप स्क्रीन पर आप जाइए। डेस्कटॉप स्क्रीन पर आप राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद आपको फर्स्ट ऑप्शन व्यू मिलेगा। व्यू पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको डिफरेंट फॉर्मेट्स के ऑप्शंस मिलेंगे आइकन को एडजस्ट करने के लिए। उन ऑप्शंस को यूज करके आप आइकन को एडजस्ट कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे सॉर्टिंग द आइकन्स, कि आइकन्स को किस टाइप से सॉर्ट करना है। हमारे सामने सपोज हमारे सामने हमारी डेस्कटॉप स्क्रीन है और उस स्क्रीन पे हमारे मल्टीपल टाइप्स के आइकन्स हैं और उन आइकन्स को हमें एक मैनेज्ड फॉर्म में लगाना है। तो उसके लिए भी हम राइट क्लिक करेंगे स्क्रीन पर। राइट क्लिक करने के बाद हमारे पास ऑप्शन आएगा, व्यू से जस्ट डाउन हमारे पास ऑप्शन आएगा शॉर्ट बाय। तो शॉर्ट बाय पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन आएंगे नेम, साइज एंड टाइप। अगर हम अपने आइकन्स को अकॉर्डिंग टू नेम सॉर्ट करना चाहते हैं तो हम उस पर क्लिक करेंगे। अगर हम अकॉर्डिंग टू
साइज करना चाहते हैं तो हम अकॉर्डिंग टू साइज उनको अरेंज कर सकते हैं, और अगर हम अकॉर्डिंग टू टाइप करना चाहते हैं तो अकॉर्डिंग टू टाइप हम अपने आइकन्स को अरेंज कर सकते हैं। तो इस टाइप से हम अपने डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर अपने जितने भी आइकन्स हैं उनको हम अरेंज कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं, उनका साइज बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, नेम से कर सकते हैं, अल्फ़ाबेट से कर सकते हैं। हम जिस टाइप से भी अरेंज करना चाहें अपने आइकन्स को, उस टाइप से हम अपने आइकन्स को डेस्कटॉप स्क्रीन पर अरेंज कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, hope you better understand about icons, how to arrange, how to sort. And next is changing the desktop background. अगर हम अपने डेस्कटॉप का बैकग्राउंड पिक्चर चेंज करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, हम अपीयरेंस पर क्लिक करेंगे। हम राइट क्लिक करेंगे अपने माउस को, और राइट क्लिक करके हमारे पास अपीयरेंस का और पर्सनलाइजेशन का ऑप्शन एक आएगा। उस ऑप्शन पे हम पिक्चर्स पे क्लिक करेंगे। जो पिक्चर्स हम अपने बैकग्राउंड में सेट करना चाहते हैं उस टाइप से हम इसमें पिक्चर सेट कर सकते हैं। जैसे हम अपने फ़ोन में वॉलपेपर्स चेंज करते हैं उसी टाइप से हम डेस्कटॉप की स्क्रीन पर भी वॉलपेपर्स चेंज कर सकते हैं। कुछ वॉलपेपर्स बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं, कुछ वॉलपेपर्स हम खुद से क्रिएट करते हैं। सपोज I just want to add my picture on the wallpaper of desktop screen. तो अगर मैं अपनी पिक्चर्स उस पर लगाना चाहती हूँ तो मैं अपनी पिक्चर्स को सेलेक्ट करूँगी और सेट कर दूँगी, जैसे हम मोबाइल में करते हैं। चेंजिंग स्क्रीन सेवर, इसी टाइप से डेस्कटॉप स्क्रीन पर जब आप राइट क्लिक करेंगे तो राइट क्लिक करके आपको स्क्रीन सेवर का एक ऑप्शन मिलेगा। उस ऑप्शन को आप यूज कर सकते हैं और उसमें आप पिक्चर्स सेव कर सकते हैं। तो स्क्रीन सेवर आपके किस काम आता है, जब आप सिस्टम पे लगातार काम कर रहे हैं और कुछ टाइम के लिए आप सिस्टम को छोड़ देते हैं काम करने के लिए, तो वो स्लीप मोड में चला जाता है। जब हमारा सिस्टम स्लीप मोड में चला जाता है तो उसकी स्क्रीन पे जो हमें पिक्चर्स या जो हमें वॉलपेपर शो होते हैं वो होते हैं स्क्रीन सेवर। उनको हम एज अ स्क्रीन सेवर यूज करते हैं। जो भी पिक्चर्स हम स्क्रीन सेवर में चेंज करेंगे वो पिक्चर्स हमें कब शो होगी, जब हम सिस्टम को काम करना छोड़ देते हैं और कुछ टाइम बाद वो स्लीप मोड में चला जाता है। तो स्लीप मोड के टाइम पे जो पिक्चर शो होती है वो होती है स्क्रीन सेवर। So students, hope you better understand about the desktop wallpaper and screen saver. I think you all are using how to set the wallpaper on your phone. Like the same, we are set these wallpapers on our laptop or our desktop. Desktop gadgets. We are discussing about desktop gadgets. Windows contains many programs called gadgets which offer information at a glance. विंडोज जो होती है उसमें बहुत सारे छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं जिनको हम गैजेट्स बोलते हैं, जो हमारी स्क्रीन पे शो होते हैं और हमें इंस्टेंटली कोई इंफॉर्मेशन अगर चाहिए होती है तो वो हमें वहाँ से मिल जाती है। So look at this picture. These are the gadgets, also called mini programs. These gadgets helps to you to take the information at a glance. Look, if we are putting these gadgets on our right side of our screen, it helps us to take the informations. Like clock, calendar, these are the gadgets which we can use on right side of our screen.
If we want to watch the time, we no need to go to the room and watch the clock. We just look at the clock gadget on our screen and take an idea about the time. Here we are using clock as our gadgets on our screen. These are the gadgets. Those are helpful for us. Next is calendar. If you want to see the date, month, then you can use calendar as your gadgets. You can also use weather on your screen as a gadget. So these are multiple gadgets which you can use on your right side of your screen to take information. Thank you friends. Thank you for watching my video. Hope you like it. Please support me and like, share and comment. Thank you.